Good morning everyone. Welcome to your physics class. In this series of previous year board questions, we were studying questions from optics. Today I am continuing our yesterday's lecture, that is some numericals related to optics and some important derivations also. So this question is for the derivation of refractive index of material of the prism. Alright, this question is asked continuously multiple times in 2019, 17, 16, 14, 10 and many other times. Alright, so this derivation is very important. That is why I am revising this so that you can understand what was the derivation, and it will also help in your practical for angle of minimum deviation of the prism. So here we have a question, that is derive the formula for refractive index of material of the prism. In this question sometimes it is also given that in terms of angle of prism and angle of minimum deviation, क्वेश्चन के साथ एडेड रहता है. अभी ये इतना ही लिखा है, but sometimes it is also asked. So for derivation of this I am going to erase it and we will make a figure of the prism and then we will come to the derivation part serially. See, here we need to make a prism. In this figure, all the notations, all the angles are very important. So we will make it very cautiously. Here, consider this angle is angle A. Alright. If this angle is A, it is the vertex angle of the prism. This is the base. Consider it as B, C. And this point is also A. Angle is also A. Alright. Now take ray. If I say ray is incident from here, it is incident ray. Now it is making angle. This is the normal on the surface AB. These AB and AC are refracting surfaces. Consider this angle as I, the incidence angle. Alright. Next, after refraction, this ray turns towards the normal and it makes angle. How much? Angle, if I say it is R1. Alright. Now after reaching the second surface AC, this ray again refracts and emerges out as our emergent ray. Consider this is our emergent ray. Emergent ray. It is our incident ray. Alright. Now the angle which the emergent ray will make from the normal, if this angle is E. Alright, we have taken this angle as R1. Consider this angle which the refracted ray is making with second surface, it as R2. Now consider this point where the two normals meets as point M. Alright, so this we have got the figure. Now you can see that A, if I say this point is P, this point is Q. So you can say that A, P, M, Q. These four are making a quadrilateral. Alright. So if this are making a quadrilateral, then we can say be very cautious about the angles. Alright. This angle
at this angle, opposite angle of the quadrilateral. Angle A plus angle, if I say this at point M, angle is angle M, then this will be equals to combined 180 degree. Opposite angles of the quadrilateral is 180 degree. Next, we have this relation. We want to calculate R1 and R2 in terms of A. So now triangle PQM, triangle PQM. Alright, in triangle PQM, angle R1 की जगह मैं केवल R1 लिख देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा आसानी होगी, प्लस R2 प्लस एंगल M is equals to again in triangle sum of all angles will be 180 degree. So from here and here we can say that angle A is actually equals to R1 plus R2. So R1 plus R2, angle A को बार बार लिखने से अच्छा है मैं लिखने जा रहा हूं A, तो ये एक इक्वेशन मिलती है R1 plus R2 equals to A, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये आ गया तो अब दूसरा हमारा काम क्या है, आई ई और डेविएशन एंगल। अब यहां पे एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रिज्म ने क्या किया, इंसिडेंट रे को डेविएट किया इसके ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। तो देखिए, इंसिडेंट रे अगर डिस्टर्ब ना रहती तो कहां जाती, ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब ना किया होता अगर मैंने तो कहां जाती, ऐसे जा रही थी ये, ठीक है। अब चूंकि ये प्रिज्म से होके गुजरी, इट विल डेविएट, ऑलराइट। सो द टोटल डेविएशन कैन बी रिटन एज डेल्टा। हियर डेविएशन एंगल कैन बी ड्रॉन लाइक द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इनिशियल इंसिडेंट रे। सो दिस टेक emergent ray backwards, you will get this angle from here to here. This angle is our delta angle, the deviation angle. All right. So now consider triangle. ये एंगल तो हमारा A है ना, मैं इसको यहां लिख देता हूं A, इसको मैं नाम दे देता हूं O, इस पॉइंट को जहां ये दोनों मीट कर रही हैं और जिस पे बन रहा है डेल्टा। ऑलराइट, तो डेल्टा वाला जिसमें बन रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल दिस विच इज डेल्टा, डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल। देखिए, डेल्टा में वहां बनाऊं ये यहां बनाऊं, बात एक ही है, ये भी तो डेल्टा है, डेल्टा ही तो है जो आगे बड़ा सा मैंने बना दिया। तो डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। एक्सटीरियर एंगल है, इसका मतलब है कि हम डेल्टा को लिख सकते हैं, सो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये डेल्टा होगा। तो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, इफ दिस एंगल, दिस होल एंगल इज आई, सो द अपोजिट एंगल दिस होल विल बी आई, सो दिस स्मॉलर एंगल विल बी आई माइनस R1, तो पुट आई माइनस R1। सिमिलरली दिस होल एंगल इज E, सो अपोजिट कंप्लीट एंगल इज E माइनस R2, सो दिस एंगल विल बी I माइनस E माइनस R2, E minus R2. All right. So this can be written as I plus E minus ले लिया कॉमन R1 plus R2. All right. You got your relation.
Now, as R1 plus R2 is equals to A, I am using it R1 plus R2 equals to A. So I plus E minus A is delta. We have got our second important relation. अब चूंकि हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, हम अभी इसको इरेज करेंगे. ऑलराइट, सो फर्स्टली डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A. ऑलराइट, यहां तक हो गया. नाउ वी वांट this delta and we are going to apply angle of minimum deviation condition. Angle of minimum deviation condition. So according to minimum deviation condition, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब डेल्टा अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू पे होता है, when delta is approaching its minimum value delta m, so at that particular angle this refracted ray or the ray inside the prism is always parallel to the base. बेस के पैरेलल होती है. और ऐसा होने पे जो मिनिमम डेविएशन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एंगल आई जो है, यानी जितने एंगल से रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रे इमर्ज करती है बाहर, यानी इमर्जेंट एंगल बराबर होगा. मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या होती है? आई इज इक्वल्स टू ई एंड, और चूंकि बेस पैरेलल है, आई और ई बराबर है, तो R1 और R2 भी बराबर हो जाते हैं. R1 इज इक्वल्स टू R2. ऐसा होता है. यही मिनिमम डेविएशन कंडीशन है, आप हमेशा याद रखिए. I इज इक्वल्स टू E, सबसे पहले वाला सबसे बाहर वाला एंगल बराबर, और ये दोनों एंगल जो R1 और R2 मैंने बनाए हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल. सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई मिनिमम डेविएशन कंडीशन. मींस ऐसी कंडीशन पे डेल्टा अपनी सबसे छोटी वैल्यू पे होता है. डेल्टा कहां होता है? सबसे छोटी वैल्यू पे. डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एम कब होता है? व्हेन I इज इक्वल्स टू E एंड R1 इज इक्वल्स टू R2. ऐसा होने पे होता है. सो पुट दिस वैल्यू हियर. डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एम. I और E बराबर है तो दोनों की जगह मैंने केवल I रख दिया, तो I प्लस I 2I माइनस A. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से I इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M बाई 2. लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ना. क्यों I निकाला मैंने, और कुछ क्यों नहीं निकाला? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई स्नेल्स लॉ. For Snell's law, we need I and R. So now I am erasing it. हम एक रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स हमारे पास पहले से है. तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, हमने I निकाल लिया है. Now from R1 plus R2 is equals to A, हमने यहां देखा R1 R2 बराबर है. सो A R1 R2 की जगह मैंने एक नया यूज कर लिया, इट इज इक्वल्स टू R. मान लीजिए R कह दिया. सो A इज इक्वल्स टू 2R और R इज इक्वल्स टू A बाई 2. लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू A बाई 2. ठीक है. दिस सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू यूज. नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम क्या होता है? N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R. मान लीजिए इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, चूंकि यहां बाहर एयर है तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? 1. सो N1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, यानी N sin R. 1 sin I इज इक्वल टू N sin R, जहां N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. सो we can write
n is equals to sin I by sin r. तो हम लिख सकते हैं n is equals to put the value of I sin a plus delta m by 2 upon sin a by 2 r की वैल्यू और I की वैल्यू रख दिया and this is our required relation. It is asked multiple times and one complete practical is also based on this derivation. It is very important. Alright, so practice this derivation. Now come to the next question. This is another important derivation which is asked multiple times in CBSE examination. That is, this is asked in 2019, 17, 15, 12, 11 and many more times in some other by some other statement or by some numerical. This type of question, this type of relation is asked. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पावर डेराइव करने को बोला है, कहीं पे फोकल लेंथ डेराइव करने को बोलेगा, कहीं आपसे इसी कॉम्बिनेशन के लिए न्यूमेरिकल पूछ लेगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. Obtain an expression for the power of a combination of two thin lenses in contact. Two thin lenses in contact. Obtain the expression for the power of that combination. Alright. So just because we have understand the question, two thin lenses, take two thin lenses, combine them, साथ साथ में इनको रख दीजिए और उससे बनने वाले जो कॉम्बिनेशन है उसका फोकल लेंथ निकालो, उसका पावर निकालो और अगर उसका फोकल लेंथ पावर पता चल गया देन वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल आल्सो. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस क्वेश्चन. ये इजी है, हम इसका केवल सॉल्यूशन जल्दी से देखेंगे. क्वेश्चन आप देख के लिख लीजिएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Here we have to make two thin lenses which are in contact. First lens L1 very near second lens L2. Consider the focal lengths of these lenses as f1, f2. Now make the optic axis or the principal axis. This is the optic axis. Now take a point object. Consider a point object कि बहुत छोटा है, यहाँ पे O. Now we will treat this combination as the separate entities and apply lens formula for lens 1 and lens 2 separately and then we will combine it. Consider the ray from here. This lens L1 what? Converges it little bit, the ray, incident ray, and then it will incident the ray somewhere here. इसने कुछ कन्वर्ज किया, यहां कहीं पे इंसिडेंट हुआ. जहां इंसिडेंट हुआ एक रे जो सीधे जाएगी ऐसे, वो तो सीधे पास करती चली जाएगी फ्रॉम दी पोल एंड दीज टू रे मीट हियर. सो हियर इट इज द इमेज मेड बाय ओनली द फर्स्ट लेंस L1. नाउ केवल इतना तो होना नहीं है. सेकेंड लेंस क्या करता है, मान लीजिए इनिशियल डिस्टेंसेस फ्रॉम L1, इट इज दीज लेंसेज आर वेरी थिन एंड दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम L1 हियर. इफ आई से इट इज U, this distance is U. Now the image form, if I say the image form is at V dash, मान लीजिए यहां से V dash, क्योंकि ये डिस्टेंसेस आप कहीं से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लेंसेज बहुत पतले हैं, बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है.
नाउ द सेकेंड लेंस ऑल्सो कन्वर्जेस द रे। यहां तक अगर ये लेंस ना होता दूसरा वाला तो वो रे वहां जाती, लेकिन दूसरा लेंस था तो ये क्या हुआ, ये यहां गई और यहां इसने इस पॉइंट से और कन्वर्ट करके यहां भेज दिया। तो ट्रूली द रे इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, नॉट दिस, बट इन थ्योरी if L2 were absent then the ray will be I dash. Alright, so apply lens formula separately for lens 1 by f1 the focal length of the first lens, 1 by v minus 1 by u, v यानी इमेज डिस्टेंस यहां से यहां तक की हमने कितना माना v डैश, माइनस 1 बाई यू कितना है, यू ही है, इक्वेशन 1. नाउ फॉर सेकेंड लेंस, सी फॉर सेकेंड लेंस द इमेज इंटरमीडिएट इमेज, ये कैसी इमेज है, दिस इमेज इज इंटरमीडिएट इमेज. ऑलराइट, सो इंटरमीडिएट इमेज ऑफ द फर्स्ट रे will behave as the object for the second lens. Alright, second lens के लिए ये object का काम करेगी. So, and the final image, if I say, is formed at v distance from the second lens. ठीक है, आप कह सकते हैं कि v और u ये सभी एक ही जगह से लिए जा रहे हैं, तो हम यहां पे ये पाते हैं कि for L2 1 by f2 is equals to 1 by the final image. Final image is formed at v, and object distance for second lens will be the distance from the lens to the I dash, because the intermediate image is behaving as the object for the second lens. So minus 1 by v dash, u की जगह यानी सेकेंड वाले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह क्या रखा, इंटरमीडिएट इमेज जहां बन रही है उसकी दूरी. Add these two, add 1 and 2, add 1 and 2, we will get 1 by f1 plus 1 by f2, it is equals to, add करिए देखिए 1 v dash वाला टर्म कट जाएगा, 1 by v minus 1 by u. Alright, 1 by v minus 1 by u. अब मान लीजिए अगर इनके कॉम्बिनेशन की कंबाइंड फोकल लेंथ f हो, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f एंड ऑब्जेक्ट at u distance and final image at v distance, then we can write 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को, we will get from third and fourth 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2. This is the required relation. और 1 by f क्या है, it is the power of the combination. p को ही 1 by f लिख सकते हैं ना, so we can say p is equals to 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2. इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं. ऑलराइट, सो दिस वाज आवर सेकेंड क्वेश्चन. नाउ कम टू वन मोर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द थर्ड वन. See another question, which is a good question from one of the sample paper. That is why I have added this in our class. A transparent slab of refractive index 5 by 3 and thickness 8 centimeter
is placed over a point source on a plane surface. All right. Find the radius of curvature of the circular area on the upper surface of the slab through which light emerges out. So firstly, I am going to make the figure for this. We have a glass slab. If I say this is the glass slab, all right, having refractive index 5/3. It is transparent as the light emerges out. Consider this glass slab is placed on a point source O. ये पॉइंट सोर्स O कोई था लाइट का, उस पर रख दिया गया था. ऑलराइट, लाइट यहां से निकलेगी तो ऑब्वियसली एक्सपेंड होते हुए ऐसे निकलेगी, ठीक है, और इधर यहां पे ये ऐसे जाएगी. हमने इसमें ये देखा कि ऐसे लाइट निकल रही है, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, थिकनेस इसकी लिख लेते हैं. थिकनेस इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 5/3. ऑलराइट, 5/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर एरिया ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब थ्रू विच लाइट इमर्जेस आउट. मान लीजिए इतने अपर सरफेस एरिया से क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में लाइट निकलेगी, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, तो इतने एरिया से मान लीजिए लाइट निकलती है, ठीक है. तो हमें ये निकालना है कि इस सर्कुलर सरफेस, जो सर्कुलर पाथ बना, एरिया बना, इसका रेडियस कितना है. मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इट इज, मैं बाहर लिख देता हूं, साफ रहेगा. फ्रॉम हियर टू हियर इट इज कैपिटल आर, ठीक है. अब देखिए लाइट इमर्ज कर रही है. मान लीजिए हमने ये माना कि ठीक क्रिटिकल एंगल पे हमने ऐसा इसको इंसिडेंट कराया है कि ठीक क्रिटिकल एंगल पे बाहर निकलती. तो क्रिटिकल एंगल पे यानी लाइट रे बाहर ना निकल के सरफेस में ही रह जाएगी, ठीक क्रिटिकल एंगल पे. तो लाइट रे के साथ क्या होगा, ऐसा. यानी हमने क्या माना कि लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करती है. दिस एंगल इज फ्रॉम द नॉर्मल इट इज सी, ठीक है, हमने ये मान लिया क्रिटिकल एंगल पे. तो सिमिलरली इसके साथ भी होगा, यहां भी नॉर्मल, यहां लाइट रे ऐसे इसी सरफेस के क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि उनके इंटरफेस पे रह जाएगी लाइट. ये एंगल हो गया सी, ठीक है. तो ये हमने अपने से माना कि लाइट रे हमने उस पे इंसिडेंट कराई कि लाइट जस्ट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुई. सो दिस इज आर. कंसिडर दिस एज हाइट h. यहां से यहां तक की हाइट को हमने क्या कह दिया, h. h कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर. अभी मैं इसको नाम दे रहा हूं h, ठीक है. यहां से यहां तक हमें r ही निकालना है, ठीक है. c एंगल पे वो जस्ट इंटरफेस पे रहती है. ये सर्कुलर वाला, ये इमेजिनरी सर्कुलर वो है कर्वेचर है जिससे लाइट रे बाहर आती है. जैसे ही आ रही है वो सरफेस के बाहर, वो सर्कुलर रीजन से बाहर आएगी, क्योंकि पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, टॉर्च जैसे होता है. तो इसी का आर निकालना है, ठीक है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. फिगर तो बन गया, यानी आधा समझ में आ चुका है. देखिए यहां पे क्रिटिकल एंगल के लिए मैंने कल ही परसों अपनी क्लास में बताया था, फॉर द क्रिटिकल एंगल व्हेन द TIR हैपेंस. और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं sin i by sin r. ठीक एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, 90, तो sin 91 है ना. तो हम कह सकते हैं इट इज 1/n, जहां n इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और 1 जिसमें जा रही है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. या तो मैं आपको ऐसे करके ही दिखा देता हूं, समझ भी आ जाएगा. देखिए यहां पे जब क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, देखिए 90 डिग्री ना. सो n1 sin i फ्रॉम स्नेल्स लॉ, n1 sin i यानी पहला वाला जिसमें से जा रही है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r होता है. n1 यानी n, sin i यानी sin c इज इक्वल टू n2 यानी सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर है 1, और sin r जो sin 90 डिग्री है. sin 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो sin
C इज इक्वल टू यहां 1 इंटू 1 बाई m, यही मैं वहां डायरेक्टली लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये वैल्यू साइन सी इक्वल टू 1 बाई m, ये हो गया। साइन सी क्या है, अब देखिए एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये यहां मान लीजिए इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया m, ठीक है ना, m, और ये पॉइंट आपने दे दिया n, तो ट्राइंगल m n o इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। साइन सी इज इक्वल टू दिस एंगल भी तो c ही होगा, ये एंगल भी तो अल्टरनेट एंगल c ही होगा। ऑलराइट, सो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस mn अपॉन mo। mn हमने r माना है, mo कितना हो जाएगा, अगर ये h है ये r है तो रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, हाइपोटेनस वाला रिलेशन। ठीक है, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, पुट दीज वैल्यूज, तो r बाई r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, मैंने इधर साइन सी की वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर कर दिया, इट इज इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर, हम लिख सकते हैं ना इसका स्क्वायर, और ये साइन सी इसका, यानी इसको भी स्क्वायर कर दे। अब मल्टीप्लाई कर लो, r स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, सो r स्क्वायर यहां पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, इट इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये h है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो r विल बी इक्वल्स टू h अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1, पुट दीज वैल्यू, h अपॉन रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1 r हम लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, n कितना है 5 बाई 3, तो 5 5 जो 25, 9 3 3 9, 25 बाई 9, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 25 बाई 9, 5 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, और 25 बाई 9 9 में यानी 25 माइनस 9 16 बटे 9, ये हो जाएगा 4 बटे 3, यानी 8 अपॉन 4 बाई 3, सो इट इज 3 ऊपर जाएगा, 8 इंटू 3 बाई 4, इट इज इक्वल टू 6 आएगा, यानी r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखा, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक्स का। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू।